Right now we will try to understand some of the structure of the molecule on the basis of VSEPR theory. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है VSEPR theory मतलब क्या? ऐसी थ्योरी जिस थ्योरी में हमको पता चलता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल कैसी है, वो हमको इस थ्योरी में पता चलता है। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे, जो VSEPR थ्योरी है उसके कुछ क्या है, पोस्टुलेट है। जैसे कि आपको पता है पोस्टुलेट मतलब क्या है, एक पहला पोस्टुलेट ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है कि वहां पर रिपल्शन क्या हो, कम हो, वहां पर क्या हो, रिपल्शन कम हो। अकॉर्डिंग टू VSEPR theory said that the lone pair of the molecule arrange themselves in such a way that there will be the less repulsion. Okay. After that, according to VSEPR theory, repulsion between bond pair and bond pair is very less as compared to lone pair and lone pair. Okay. So according that, we will try to understand some of the molecule structure, their shape with the help of this HTML file. Okay. So now you can see here there are different type of the molecule is there, around this molecule is there. Okay. So we will try to understand one by one. Okay. What we going to understand here, it is the actual 3D stimulation of the molecule. Through that we will understand how the molecule is actual appearance or what is the actual understanding of that particular molecule. वो molecule actual में कैसा दिखता है वो हम इस स्टिमुलेशन से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या समझेंगे कि मॉलिक्यूल जो है हमारा वो कैसा है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ओके, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये है एक्चुअल मॉलिक्यूल जो इस तरह से दिखता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है आपको वो एक्चुअली इस तरह से दिखता है। ये दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने बॉन्ड एंगल का जो कॉलम है या अगर बॉन्ड एंगल को अगर टिक किया तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है हमारा वाटर जिसका इस तरह से स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री कैसी है इसकी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेंट। बॉन्ड एंगल कितना है, 104.5. Okay, you can reply in video also. Okay, that is not issue. So this is the first molecule. I hope you understand. This is the actual structure of the water. Through that we can understand actual geometry of the water. According to this HTML file stimulation, you can say the geometry of the water molecule is bent. And what is the bond angle? Okay, through this stimulation you can easily say that how many bond pair is there, 2 bond pair and 2 lone pair, and due to that the structure of water molecule is bent. Okay, now we will move toward the next molecule. Right now we have CO2. Okay, this is the actual structure of CO2. Central atom is carbon, along with that 2 oxygen is there, and as you already know that both the oxygen having the double bond along with the carbon, as you already know that valency of the carbon is 4. Okay, so one oxygen having the double bond along with the carbon and another oxygen also having the double bond. As you can see here, bond angle is 180. Okay, even though we try to disturb that stimulation, after all it will come toward the actual geometry of that molecule. Okay, so geometry of the molecule is linear and bond angle is 180. You can see here. Okay, so if we disturb the stimulation or we rotate the stimulation, it will rotate, but actually after some time it will become as it was. Okay, जैसा था वैसा ही वो बन जाएगा। ठीक है, so ये मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। ओके, और बॉन्ड एंगल कितना है,
180। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा और मॉलिक्यूल लेंगे, दैट इज SO2। सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, सल्फर। लोन पेयर कितनी है, एक, और दो क्या है, ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन का सल्फर के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। और उसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर हम चेक करेंगे यहां पर तो कैसी होगी, इट विल बी लाइक वाटर मॉलिक्यूल। कैसी है, बेंट, है ना। और बॉन्ड एंगल हम चेक करेंगे तो इट विल कम अराउंड 119, है ना। क्लियर है। तो ये थी आपकी ज्योमेट्री ऑफ SO2। SO2 में बॉन्ड एंगल कितने हैं, आई मीन बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, 190। ओके, इसको आप रोटेट करके चारों तरफ से मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ये तीसरा मॉलिक्यूल था हमारा। आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर मॉलिक्यूल दैट इज XeF2। ओके, ज़ेनॉन डाई फ्लोराइड। अब ये मॉलिक्यूल देखो आप थोड़ा, इसमें लोन पेयर से ज्यादा, बॉन्ड पेयर से ज्यादा क्या है, लोन पेयर। ये आपको जो दिख रहे हैं ना ये वाले, ये आपके लोन पेयर है। ओके, तो आप अच्छे से अगर इसको देखेंगे तो लोन पेयर कितनी है इसमें, 3 है। और उसी 3 लोन पेयर की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री जो है कैसी है, लीनियर है। बट लोन पेयर ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है जिसकी वजह से क्या हो, रिपल्शन कम हो। ओके, अब ये मॉलिक्यूल का आप रोटेट करके देख सकते हैं। देखो अब इसमें बॉन्ड पेयर कितनी है, नहीं बॉन्ड पेयर कितनी है, बॉन्ड पेयर 2 ही है और लोन पेयर है 3। और उसी की वजह से मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना है आपको पता है, लीनियर में कितना होता है, 180। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा मॉलिक्यूल था। उसके बाद हमारा मॉलिक्यूल है BF3। ओके, अब ये मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, BF3। कौन सा मॉलिक्यूल है ये, BF3। इस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है इसकी, देखो आप, हमने अगर इसको टैग किया तो हमको ज्योमेट्री यहां पर दिखाई देगी, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। एक ही क्या है, प्लेन में। बॉन्ड एंगल कैसा है, 120। तीनों भी जो बॉन्ड एंगल है वो कितने हैं, 120 के। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। लास्ट में हम इसको रिपीट भी करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या था, BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, आई मीन नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे, दैट इज ClF3। अब देखो ये क्लोरीन का एक प्रकार का, क्लोरीन और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो लोन पेयर कितनी दिखाई दे रही है आपको, वेरी गुड, कितनी, 2 लोन पेयर है ना, यस और नो, दो क्या है आपकी, लोन पेयर है। 2 लोन पेयर होने की वजह से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई। सो लेट मी चेक अबाउट द ज्योमेट्री, इट इज टी शेप। दिखाई दे रहा है आपको टी शेप की तरह। इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूं, आपको ये टी शेप लगेगा। अभी दिख रहा है अभी टी के जैसा, यस और नो, दिख रहा है टी के जैसा, 1 2 और ये 3। और लोन पेयर कहां पर है, ऊपर की साइड है देखो। और लोन पेयर है कितनी, 2 है। ओके, तो आपको पता है जब हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं तो हम उसमें से क्या रिमूव करते हैं, लोन पेयर हमको कंसीडर करनी नहीं होती है। सो द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टी शेप। मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ClF3। आई बात समझ में, देखो तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल नंबर 4 या 5 आई थिंक। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल वी हैव टू डिस्कस अबाउट, दैट इज NH3। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा, NH3। ऐसा आपको ऑलरेडी पता है कि अमोनिया जो है, अमोनिया में बॉन्ड पेयर कितनी दिखाई दे रही है आपको, कितनी दिखाई दे रही, स्वराज कितनी है, 3। और लोन पेयर कितनी है, 1, है ना। तो एक लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। और उसी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, फिर ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ओके, बॉन्ड एंगल हमने यहां पर चेक किया तो वो दिखाई दे रहा है, इट इज अराउंड 107.8।
8। ओके, तो आप मॉलिक्यूल को आपको जैसा चाहिए आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दिस इज द लोन पेयर, और ये जो आपको थिक बॉल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं दैट इज द बॉन्ड पेयर। ओके, तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी VSC पेयर थ्योरी जो है इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ओके, so this is the structure, geometry and bond angle of ammonia. Now we will move toward the next molecule, that is CH4। ओके, ये आपको सबको पता है कौन सा मॉलिक्यूल है ये, CH4। आई थिंक यू जस्ट नीड टू रिप्लाई व्हाइल आई एम आस्किंग। ओके, जब मैं पूछ रहा हूं तो आप उसमें रिप्लाई करो कि देयर इज नो इशू इवन दो इन वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आपको जब पूछा जाए तो आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे अपन, ये मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है, CH4 है ना। अगर ज्योमेट्री हमने देखी तो इट विल कम अराउंड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इट विल कम अराउंड 109, 109.5 है ना। ये हमारा इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, इट इज लाइक अ टेट्राहेड्रल। ओके, दिखाई दे रहा, और बॉन्ड एंगल कैसा है 109.5 है ना। आफ्टर एंड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल आई विल आस्क इंडिविजुअली, मैं आपको एक एक करके पूछूंगा सबको इन वीडियो ऑल्सो। ओके, सो आई होप यू विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, उसके बाद बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ गया, उसके बाद ज्योमेट्री पे आ गई। आफ्टर दैट हमारा मॉलिक्यूल है SF4। अगर हम इनको डिस्क्लिक करें तो यहां पर हम पहले मॉलिक्यूल को देखेंगे, कैसा दिख रहा है मॉलिक्यूल को, कल ही बताया था कैसा दिख रहा है, सीसॉ के जैसा दिख रहा है ना। और एक क्या है, बॉन्ड एंगल कितने, सॉरी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, बॉन्ड पेयर 4, एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या होती है, देखो यहां पर इट इज सीसॉ के जैसा दिख रहा है, आपको देख सकते हैं ना आप, यस और नो, यस, सो इट इज लुक लाइक सीसॉ ओनली। While we ask about the bond angle, so bond angle there is 2 type of bond angle। एक क्या है, एक जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, हाँ, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड एंगल कितने हैं 87.8 के, लेकिन एक जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 101.6 का है। मॉलिक्यूल को आप रोटेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मॉलिक्यूल कैसा है। ओके, देख सकते हैं आप, this is the actual structure of molecule which is appearing like a normal seesaw, है ना। आपने देखा होगा एक बच्चा इधर से बैठा होता है, एक बच्चा इधर से बैठा होता है, ठीक है, तो it will appear like a seesaw। Now we will move toward the next molecule of our discussion, that is XeF4। हाँ, xenon टेट्राफ्लोराइड। कितना है, देखो आप, बॉन्ड पेयर कितनी है, बॉन्ड पेयर कितनी है, 2 है या 4 है, 4 है। ओके, इट इज लुक लाइक अ ड्रोन, है ना, ड्रोन के जैसा दिख रहा है ना। अरे यस और नो, देखो कैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर आप क्या, कौन बताएगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं, कल्डो ने, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है या 4 है, 4 है, और लोन पेयर कितने हैं 2। तो नाउ वी विल चेक वेदर द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, फिर कितना है, ऑल अराउंड 90, है ना। इट इज मोस्टली लुक लाइक एज अ ड्रोन, है ना। देखो आप इसको देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा घुमाकर आपको रोटेट करके बता रहे हैं। ओके, रोटेट करके इसलिए बता रहे हैं कि आप चारों तरफ से उसको देख ले, ठीक है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ XeF4, xenon टेट्राफ्लोराइड। आई बात समझ में, क्लियर है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लेट मी अनचेक दिस XeF4। उसके बाद है हमारा BrF5, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ BrF5 का। देखो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल के जैसा दिख रहा है क्या, वंस वी विल चेक, देखते हैं हम। हाँ, वेरी गुड, कैसा है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितनी है बेटा, को लेकर
कितनी है 5। लोन पेयर कितनी है तेजस्वी, कितनी है 1। तो 1 की वजह से इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद श्रावणी, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इट इज अराउंड 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल इज देयर, एक है 89.5 और एक है 84.8। ऐसे 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, आपको थोड़ा याद रखना है स्क्वायर पिरामिडल होने की वजह से। इसको रोटेट हम इसलिए कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल हमको एक्चुअल में कैसा दिखता है वो समझ में आ जाए। ओके, क्लियर है? चलो, सो लेट मी अनचेक दिस बॉक्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, PCl5। देखो PCl5, ये लग रहा है आपको थोड़ा पेंटागन की तरह लग रहा है, देखेंगे अभी अभी। देखो थोड़ा, 2 पिरामिड बनते हैं इसमें, यस ऑफ कोर्स, 1 और 2। लेकिन कैसा है फिर, देखो यहां पर चेक करेंगे हम। लेट मी चेक द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल। वेरी गुड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल देख लो, सब कैसे है 90। जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है तो बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं 90। ओके, क्लियर है? अवधूत, समझ में आ रहा है तुम्हारे? ये कौन सा मॉलिक्यूल है अवधूत? हाँ, PCl5। एक और रह गया, वी विल क्या दिखा रहा था? हाँ, 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, वेरी गुड। क्या है? एक 120 भी है और एक दूसरे कौन से है 90। तो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, थोड़ा हमको याद रखना है, ठीक है? लेट मी अनचेक एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और हमारा ये लास्ट का मॉलिक्यूल है। ओके, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, है ना? देखो इसको देख लो आप, ये कैसा दिख रहा है आपको, क्या बोल सकते हैं आप, क्या बनेगा इसका? ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं हम इसको। देखेंगे हम ज्योमेट्री कैसी है, देखो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कैसा है 90 डिग्री, ठीक है? तो इस तरह से कुल मिलाकर हमने कितने मॉलिक्यूल पढ़े हैं, यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मॉलिक्यूल। कितने पढ़े हमने? 13। तो ये 13 मॉलिक्यूल आपके एग्जाम में हो सकते हैं, ठीक है? हो जाता हमारा रिवीजन हो जाता, ठीक है? चलो इसको मैं अनचेक कर देता हूं, आगे हम हमारे पहले मॉलिक्यूल पे, ठीक है? देखो आप सब देखो, सब देखो, क्योंकि मुझे उधर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसको करना पड़ता है ना। ओके, मॉलिक्यूल कौन सा है, कौन सा मॉलिक्यूल है? रिप्लाई दो आप, कौन सा मॉलिक्यूल है? H2O। ओके, हाँ। सूर्यवंशी, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल? कैसी है? बेंट, देखते हैं हम, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल कौन बताएगा? स्वराज, बोलो जल्दी। 104, जल्दी जल्दी बताने का। ओके, हमारे पास टाइम नहीं अब। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, लेट मी अनचेक। CO2। ओके, ज्योमेट्री कैसी होंगी रिया? जिसको पूछा है वही बोलेगा। ओके, ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल 180, जिसको पूछा है वही बताओ। ओके, कॉमनली बताना नहीं है, ठीक है? फिर से मैं अनचेक करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल पर, आई मीन तीसरे मॉलिक्यूल पर, SO2। हाँ बोलो, स्पर्शिका ज्योमेट्री कैसी होगी? बेंट होगी, वेरी गुड। बॉन्ड एंगल कितने हैं, सॉरी बॉन्ड एंगल कितना होगा? ओके, वेरी गुड। लोन पेयर कितनी है? हाँ, ओके, देखो कितना है, इट बॉन्ड एंगल है 119। ओके, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल के पास आप जाएंगे। जीमल, आप बताओ, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल? 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं? हाँ, तो कितनी क्या होगी फिर ज्योमेट्री? जिसको आता वो हाथ ऊपर करके बोल सकता है, हाँ बोलो। वेरी गुड, कैसी है? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा आपको पता है? 180, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मॉलिक्यूल
दैट इज BF3। हाँ ऐश्वर्या, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। ज्योमेट्री कैसी होगी? बोलो बोलो, ट्राई करो, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करो। हाँ स्वराज, वेरी गुड। ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा शिवजीत? वेरी गुड। कितना? 120। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा ClF3। देखो अब इट इज लुक लाइक सीसॉ और नॉट? नो। ओके, अब कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। ऐश्वर्या बोलिए, बॉन्ड एंगल कितने, बॉन्ड एंगल आई मीन बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। कौन बताएगा? जीमल। ओके, वी विल मूव। टी शेप है और बॉन्ड एंगल कितना है? हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा NH3। ओके, कौन बताएगा? स्वराज, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? वेरी गुड। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कौन बताएगा? ओके, वी विल चेक। इट इज अराउंड 107। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज CH4। ये तो सबको होना चाहिए पता। श्रावणी, कैसा है इसका बॉन्ड एंगल और शेप क्या होगी? हाँ तेजस्वी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109। चलो, टाइम नहीं इतना हमारे पास। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जिसको आता है वो हाथ ऊपर करो बस। आई विल आस्क आफ्टर दैट। हाँ, दिस इज द मॉलिक्यूल SF4। हाँ श्रावणी बोलो। वेरी गुड, हम सबको पता है सीसॉ। हाँ यस। बॉन्ड एंगल? वेरी गुड, जबरदस्त। क्या नाम है आपका? शिवजीत। दिस विल बी देयर एंड दिस। हाँ दैट इज ऑल्सो ओके ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज XE। हाँ, ये तो आपको ड्रोन के जैसा दिख रहा है। हाँ यादव, स्क्वेयर प्लेनर। बॉन्ड एंगल? once bond angle is not coming right now. हाँ यस ओके, कोई बात नहीं, आ गया। ओके, डोंट वरी, होता है। चलो ओके, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल हमारे होने चाहिए। हाँ BRF5। पहले तो मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितनी है? कितनी है बॉन्ड पेयर जीमल? 5। लोन पेयर कितनी है? 1। शेप क्या होगी कौन बताएगा? ऐश्वर्या, स्क्वायर पिरामिडल। वेरी गुड। बॉन्ड एंगल? हाँ चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज PCl5। ओके, who will try to? हाँ अवधूत बोलिए, बोलो जल्दी, व्हाट इज द ज्योमेट्री? हाँ नेक्स्ट, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। वेरी गुड। बॉन्ड एंगल 90 and 20, both is there. Okay, the last molecule we want to discuss, that is SF6। हाँ, कौन रहेगा अभी जिसको पूछा नहीं? अवधूत आई थिंक रिमेन। शिवजीत इज ऑल्सो रिमेन। हाँ शिवजीत बोलो। ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा अवधूत? हाँ कितना? 90 एंड नो ओनली 90। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ VSC-PR theory।